Hello friends, this is Veer from Saraswati Classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as you know that our journal entry chapter is going on and we have calculated so many questions regarding journal entry before this lecture. Today we are going to solve our question number 9. Friends, as we know that when we are going to solve journal entries, we have to make a format. Format is to be in the format of first of date, then particular, LF number, and debit and credit two columns are to be given over there. Right, friends? So today's question is write journal entries in the books of Ramesh. So friends, it's a quite lengthy kind of questions, so we'll have to make it fast. Okay, friends. So start with first entry. This is data given to you of 2014 April 1st. So first of all, 2014 April 1 date, it is given the statement that cash purchase of rupees 15,000. So we are purchasing goods of 15,000 as well as and cash of 14,000. See what is given? The single in a single transaction, two entries are given over here. So what we have to do? We have to calculate. How to calculate? We have to write two and divide it into two sections. The first section is of regarding purchase and second is of sale. See what is the first one? So हमने अगर परचेज की है 15,000 की, so what is the basic concept of goods of account, goods real account? See, anything comes in the business should be debited. So goods comes in means purchase. So purchase account will be debited, and what is goes out of business? So cash goes out of business. To cash account credited. It is 15,000. The second one, it is given cash sale. Cash sale means cash is coming in the business, so cash account debited, and goods are going out of business, so sale account to be credited. Friends, it is to be very must to be understandable that the base of accounting, the rules of accounting, those we have discussed earlier on, personal account, real account and nominal account, that should be learned it out proper way, so that you have no problem in calculation or in writing the journal entry. See the second one, what is given over there? A personal goods of 10,000 brought to business. Whatever we are bringing to our business, that is our capital. See, whether we are getting furniture, debtors, goods, or stock or cash, they all are to be treated as capital. So we are coming over here with goods. The stock account debited or goods account debited to whatever we are bringing, that is our capital. To capital account credited 10,000 and 10,000 is on. फ्रेंड्स, खास ये ध्यान रखना है कि जब हम डेबिट क्रेडिट में इफेक्ट देते हैं तो आपकी जो अमाउंट की रकम है वो सामने सामने नहीं होनी चाहिए. मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर्स में आपको ये डिस्कस किया हुआ है. ये चीज़ आप खास ध्यान रखिएगा. डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट लिखनी है और टू जो क्रेडिट की लाइन है उसके सामने क्रेडिट की रकम लिखनी है. ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर. गुड्स ऑफ 12,000 परचेज फ्रॉम हर्ष. हमने हर्ष के पास से 12,000 के गुड्स परचेज किए. नाउ इट इज़ वेरी इजी. You have to understand whether it is a cash transaction or a credit transaction. So there is no detail given regarding cash payment or check payment. So it's a credit transactions. So अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब हमने हर्ष के पास से परचेज किया तो हर्ष तो गिवर हो गया. सो परचेज किया मतलब गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं तो गुड्स कम्स इन. सो परचेज अकाउंट डेबिटेड 12,000 रुपीज एंड हर्ष इज गिवर. सो हर्ष अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बिकॉज एज पर द पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. द नेक्स्ट रूल इज out of goods purchased from hers, the defective goods of half goods returned to hers. हमने जो हर्ष के पास से गुड्स परचेज किए, उन परचेज किए गुड्स को हमने क्या किया, हाफ डिफेक्टिव होने से रिटर्न कर दिए. फ्रेंड्स, खास आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप अकाउंट स्टेट की सम सॉल्व करते हैं तो आपके सामने बुक होनी ज़रूरी है. आप अपने वीडियो को पॉज करके अपने बुक में देख सकते हैं. तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ और आप जो पढ़ रहे हैं वो एंट्री मैच करना ज़रूरी है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट आप बोर्ड पे देखते रहेंगे तो और बुक आपके पास नहीं रहेंगी तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है. तो जब भी आप अकाउंट स्टेट का लेक्चर पढ़ने बैठ रहे हो, जब भी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास आपकी बुक और कैलकुलेटर, नोटबुक सब आपके साथ में होना जरूरी है. ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं. अपना टॉपिक क्या था कि हमने जो हर्ष के पास से गुड्स खरीदे हैं उनमें से हाफ गुड्स डिफेक्टिव होने से हमने उसको वापस कर दिए. सो वट एवर वी आर परचेजिंग फ्रॉम हर्ष, नाउ वी आर रिटर्निंग टू हर्ष. To whom we are returning? We are returning goods to hers. So hers is receiver. So hers account will be debited. Is it clear? How much the amount? भाई हमने 12,000 के goods purchase किए थे, आज हाफ वापस कर दिए तो हाफ कितने हो जाएंगे? 6,000 रुपीज. But the second entry will be
हमने परचेज किया था गुड्स को, परचेज किए हुए गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं. सो इट इज टू बी नोन एज परचेज रिटर्न अकाउंट. क्या बोलेंगे इसको हम, परचेज रिटर्न अकाउंट. सो इट इज हियर फर्स्ट अकाउंट डेबिटेड 6000 rupees to purchase return account will be credited 6000 rupees. Okay friends, so our new transaction is goods of 10,000 purchased from Ramila and half amount paid by check. Now we are purchasing the goods is very फैक्ट कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज में फुल अमाउंट डाल दो. हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए, सिंपली परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज. और उसमें से हमने क्या किया हुआ है, अगर सिंपली ऐसा कहा होता कि रमीला को सोल्ड कर दिए या रमीला से परचेज किए, सो एंट्री विल बी गुड्स अकाउंट डेबिटेड मींस परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज और रमीला अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज. इट इज ओवर. बट इट हियर इज स्पेसिफाइड दैट हमने रमीला से जो 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं उसमें से हमने उनको हाफ अमाउंट पे कर दिया थ्रू चेक. तो टू बैंक अकाउंट पैसा तो जा रहा है मतलब क्या कर दो, उसको क्रेडिट कर दो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपीज. और बाकी जो 5,000 बचा मींस स्टिल रमीला इज आस्किंग और हैविंग अ ड्यू फ्रॉम अस, हमसे मांगती है. कितना ड्यू है उसका, 5,000 रुपीज. ठीक है, पूरा 10,000 का हमने पे आउट उसको अभी किया नहीं है. तो स्टिल सी इज अवर क्रेडिटर. Okay friends, so next transaction is goods purchased from Ramila sold to Meeta at adding 30%. See what is given over here. You can see हमने रमीला के पास से 10,000 के गुड्स परचेज किए. ठीक है फ्रेंड्स, हमने 10,000 के जो गुड्स हमने उसके पास से परचेज किए हुए हैं उसमें हमने 30% प्रॉफिट ऐड कर दिया. तो 10,000 का 30% हो जाएगा 3,000, तो ये हो जाएगा 13,000. अब 13,000 के गुड्स में हमने कस्टमर को ऐसा ऑफर किया कि हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और 10% डिस्काउंट होता है 1300. और इस तरह से कस्टमर के पास वो 13,000 की जो प्रोडक्ट थी वो 11,700 में जाएगी. मतलब वी आर सेलिंग द गुड्स ऑफ 10,000 at 11,700 to Meeta, but we know that the actual price of that 11,700 is 10,000. Meeta doesn't know. मीता को तो ऐसा कि 13,000 के गुड्स थे, हमने उसको 10% डिस्काउंट दिया तो मीता को 11,700 में गुड्स पड़े. मतलब मीता इज अर्निंग 1,300 रुपीज एज प्रॉफिट. बट दिस इज नॉट द बेसिक फैक्ट, समझो. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग इन अ डीप स्टडी बट सिंपली 10,000 के जो गुड्स थे उसमें 3,000 हमने खुद ही प्रॉफिट एज्यूम करके ऐड कर दिया, उसमें से भी 10,000 का 10% का डिस्काउंट दे दिया. और गुड्स जो 10,000 के थे वी आर सेलिंग दोज गुड्स एट 11,700 टू मीता. सो मीता रिसीवर है, सो एंट्री विल बी मीता अकाउंट डेबिटेड. क्या हो जाएगा, मीता अकाउंट डेबिटेड एज वी आर सेलिंग टू मीता. सो मीता इज द रिसीवर, मीता अकाउंट डेबिटेड और हम क्या सेव कर रहे हैं, शेयर अकाउंट क्रेडिट विल बी देयर दैट इज 11,700. ओके फ्रेंड्स, इट इज ओके. नाउ गुड ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट नंबर 18, मीता रिटर्न गुड्स फॉर 1,000 रुपीज. सिंपल एज इट इज. मीता ने क्या किया, हमें 1,000 के गुड्स वापस कर दिए. अब मीता गिवर है तो मीता तो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन कौन से गुड्स वापस आए, द गुड्स विच वी हैव सोल्ड टू हर. सो व्हाटएवर वी आर सेलिंग टू हर दोज गुड्स आर रिटर्निंग बैक टू अस, दैट इज सेल्स रिटर्न. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज परचेज रिटर्न, व्हाट इज सेल रिटर्न. परचेज रिटर्न में क्या होता है, हमने जो परचेज किया है गुड्स फ्रॉम समवेयर एल्स, नाउ वी आर रिटर्निंग टू देम. In sales return, whatever we have sold to any one person, he is returning to us. That is our sales return. बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो वो sales return हो जाएगा. तो sales return account debited 1,000 rupees. Who is returning Meeta? The Meeta account credited. That is also 1,000 rupees. I hope you understand, friends. Now on the next topic, your date number 20. Goods of 20,000 sold to Kalpana at 10% trade discount and 5% cash discount. Friends, this is you understand very much clearly. 10% trade discount and cash discount. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो आपको जो ट्रेडर है वो आपको जो प्रिंटेड प्राइस है उस प्राइस में कुछ डिस्काउंट देता है, सो दैट आपको एक अट्रैक्शन मिलता है कि कस्टमर, ये जो ट्रेडर है हमें कुछ डिस्काउंट दे रहा है तो वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम देयर. ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट. हमेशा हम प्रिंटेड प्राइस में से क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं. वेदर योर ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट, डोंट हैव एनी इशू. बट कैश डिस्काउंट के बारे में एक मसला है, आपको ध्यान रखना है. कैश डिस्काउंट हम तभी ध्यान में लेंगे जब ट्रांजैक्शन आपका कैश से रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड हो. तो अगर ऐसा नहीं है तो हम कैश डिस्काउंट को ध्यान में नहीं लेंगे.
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए कल्पना को हमने क्या किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट से गुड्स बेचे हैं और 5% कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई यहाँ मसला आएगा ही नहीं क्योंकि कोई कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं, कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं दिया हुआ है। ऊपर से पूरी की पूरी एंट्री क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन से। तो वी आर सेलिंग टू कल्पना, मीन्स कल्पना रिसीवर है, so एंट्री विल बी कल्पना अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। अब मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमेशा हम क्या करते हैं, आपकी प्रिंटेड प्राइस में से माइनस करते हैं। आपकी प्रिंटेड प्राइस कितनी आई हुई है, 20,000 में 10% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, इट विल 2,000, माइनस प्लस करेंगे, माइनस और इक्वल टू करेंगे, सो एग्जिट अमाउंट आपके पास आएगी 18,000। सो 20,000 के प्रोडक्ट में हमने 2,000 का डिस्काउंट दे करके कल्पना को माल क्या कर दिया, बेच दिया। तो कल्पना रिसीवर हो गई, तो कल्पना अकाउंट डेबिटेड, और हम सेल कर रहे हैं, सो गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो सेल अकाउंट क्रेडिटेड। इज इट ओके फ्रेंड्स? नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट अंडरस्टैंडेबल प्रॉफिट। Goods of 2,000 rupees destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 1,000 rupees. Now, the very most important point over here that goods of 2,000 destroyed and insurance company is giving us only 1,000 rupees. So first of all, we will see the entry. तो 2,000 का मटेरियल जला, 1,000 की हमें रिकवरी हो रही है, 1,000 का लॉस हो गया, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, एज देयर इज लॉस हेंस इट इज टू बी डेबिटेड, अगर प्रॉफिट होता है क्रेडिट करते हैं टू परचेज अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी मच क्लियरली। हमने अब तक ये सीखा कि हु इज द रिसीवर शुड बी डेबिटेड, हु इज द गिवर शुड बी क्रेडिटेड। गिवर है तो क्रेडिट करो, रिसीवर है तो क्या करो, डेबिट करो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, गिवर है, स्टिल वी आर डेबिटिंग हर। व्हाई दिस इज हैपनिंग ओवर हियर? दिस इज हैपनिंग बिकॉज टिल नाउ, जब तक कोई एक्सीडेंट, कोई नुकसान नहीं हुआ था, तब तक हम इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलरली पे कर रहे थे, ये सोच करके कि जब कोई नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस क्लेम को एक्सेप्ट करेगी और हमें पेमेंट करेगी। इस सोच को लेकर के हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे थे, व्हाट आर द प्रीमियम इज। अब उस 2,000 के लॉस हमने इंश्योरेंस कंपनी फुल पेमेंट नहीं करके 1,000 पे कर दिया। रीजन क्या है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आके चेक किया होगा कि देयर मे बी सर्टेन मिस्टेक ऑफ माइन टू, तो उसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ माल पूरा ना जला हो, कुछ ऐसा हो सकता है जो मटेरियल जला हुआ है उसमें से कुछ रीसेल कर सकते हो, या इंश्योरेंस कंपनी ऐसा लगा हो कि नहीं इस मटेरियल की एक्चुअल वैल्यू आज की तारीख में 1,000 ही रह गई है। सो उस तरह से हो सकता है, कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं, पर हमें एंट्री करनी है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है, 1,000। तो इंश्योरेंस कंपनी आज हमारी डेटर है, संपत्ति है, संपत्ति हमेशा उधार होगी। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है 1,000 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़ एंड टोटल टू गुड्स गॉन बाय फायर। In the past we do like this, the goods gone by fire, goods gone in fire account credited, but right now as we know that the goods gone in fire, goods destroyed in rain, goods loss ड्यू टू थेफ्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना एक्चुअली कॉस्ट प्राइस पर होती हैं, और कॉस्ट प्राइस जो भी माल जाता है वो उससे हम क्या करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं, मतलब उतना मटेरियल परचेज प्राइस में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग गुड्स गॉन बाय फायर हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। और हर बार जब भी हम डोनेशन देंगे, जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय इन रेन होगा, जब भी गुड्स थेफ्ट हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से जो भी इवेंट होगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इज इट ओके? नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, ये भी गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। गुड्स तो ₹500 ड्यून्ड इन रेन, बारिश में 500 का माल चल गया, लेकिन हमने उसको बेचा, सेलिंग किया तो 200 मिला उसका। अब यहाँ ये नोटिस करने वाला इंश्योरेंस का टॉपिक यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हो कि इस बंदे ने इंश्योरेंस नहीं लिया होगा, कोई इशू नहीं है। 500 का माल चल गया, 200 हमने रीसेल कर दिए, तो हमें लॉस कितना हो रहा है, 300 रुपीज़ का। हम यहाँ एंट्री करेंगे, कैश आ रहा है 200 रुपीज़, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 200 रुपीज़, और बाकी 300 आने का कोई जरिया नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई चांस नहीं है, सो 300 का लॉस हमें सहन करना पड़ेगा, एज वी हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, और वो माल बिकेगा भी नहीं, तो 300 लॉस 300 का लॉस सहन करना पड़ेगा। टू अगेन परचेज अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि कोई भी माल बारिश में भीग जाएगा, डोनेशन के रूप में जाएगा, या फिर चोरी हो जाएगा, या फिर आग में जल जाएगा, तो वो कॉस्ट प्राइस से ही चलेगा। एक्चुअली जब हम कस्टमर को माल बेचते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, लेकिन जब ये माल नेचुरल कॉजेज का या फिर एक्सीडेंटली कुछ होता है, तो वो हम उसको परचेज में से माइनस करते हैं, उतना परचेज, उतनी कॉस्ट घट जाती है, उतना मटेरियल घट जाता है, तो हम उसको कॉस्ट प्राइस में लेने के कारण उसको परचेज में से माइनस करते हैं। दैट इज वाई वी हैव टू राइट ओवर हियर एज
परचेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मतलब किसी कंपनी वाले ने हमें मुफ्त में दिया है, आप यूज़ करो, लेकिन हम जानते हैं कि इफ देयर इज नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस देन दोज एंट्री शुड नॉट बी noticed over here. So here it is a non-economic transaction, hence we have written over here non-economic transaction to entry will be shown. ठीक है, क्योंकि हमने कोई पेमेंट दिया ही नहीं है उस चीज़ को। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो सेम है, गुड्स ऑफ ₹250 वाज रिसीव्ड एज फ्री सैंपल। फिर से फ्री सैंपल आया, उसकी कोई एंट्री करनी नहीं है, लेकिन आगे कुछ ऐड करके दिया है विच वी हैव सोल्ड एट ₹400। किसको सोल्ड किया, कोई नाम नहीं दिया गया है। नो नेम इज गिवन देन इट इज अ कंप्लीटली कैश ट्रांजैक्शन। तो बेचा है तो पैसा आया होगा, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिटेड ₹400 टू प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट नहीं है लेकिन हम बेच रहे हैं तो हमारी सेल गिनी जाएगी ना, इसलिए टू सेल अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, अ मोबाइल ऑफ ₹1500 परचेज अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000। तो हमने एक कस्टमर हमारे पास आया मोबाइल सेल करने के लिए, तो हमने उसको बोला कि ये मटेरियल पड़ा है, ये 1500 का, ये आप ले जाओ। तो कस्टमर ने उसने क्या किया, हमें मोबाइल दे दिया और बदले में हमसे गुड्स देके चला गया। सो हमें पता है रियल में वो गुड्स जो हमने उसको दिया उसकी वैल्यू ₹1000 थी, लेकिन हमने उसको क्या बोला कि भाई तेरा मोबाइल कितने का है, 1500 का, तो एक काम कर, ये माल 1500 का पड़ा है, आप माल ले जाओ और मोबाइल हमें दे दो। तो हमारे पास वो जो 1500 का मोबाइल था वो रियल में हमने कितने रुपए का उसको एक्सचेंज किया, 1000 के मटेरियल में। तो हम ये बोलेंगे कि वो मटेरियल, वो जो मोबाइल हमारे पास आया हुआ है वो 1500 का नहीं है, वो मोबाइल हमें सिर्फ 1000 में ही पड़ा, क्योंकि हमारा अगेंस्ट विच आवर गुड्स गॉन ऑफ ओनली ₹1000, दैट इज ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो मोबाइल इज अ एसेट, इट कम्स इन द बिजनेस, मोबाइल अकाउंट डेबिटेड और मटेरियल जा रहा है लेकिन कॉस्ट प्राइस पे जा रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो सेल हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, उसको परचेज में लॉट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करना क्या, हम लोगों को, मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पे मिस आउट करी। पहली मिस आउट ये करी कि अगर आपको पेज लिखते लिखते आपका पेज टर्न हो जाता है, पेज भर जाता है, तो आप क्या करोगे, लास्ट में डबल लाइन ना करके सिंपल सिंगल लाइन खींच करके बाकी आगे ले गए, अथवा बैलेंस कैरिड टू नेक्स्ट पेज ऐसा लिख देंगे, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे, टोटल करके उस टोटल को नेक्स्ट पेज पे लाएंगे। तो सबसे ऊपर जो पर्टिकुलर है वहाँ हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, बाकी आगे लाए, और कितना जो भी अमाउंट वहाँ पे रही होगी वो अमाउंट यहाँ डालेंगे, और फिर इन सबको टोटली करके लास्ट में खास ध्यान देना है कि जब भी आप अकाउंट क्लोज करते हो तो ऊपर सिंगल लाइन क्लोज करनी है, और नीचे जब आओगे तो नीचे डबल लाइन क्लोज कर दो। डबल लाइन मारने का मतलब ये हुआ कि आपका सम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और हम टोटली करेंगे तो इट विल बी ₹1,06,100 total of this question. So this is a question to be asked in the examination, very important point question for you friends. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जर्नल एंट्रीज की मेथड समझ में आई होगी। अगर ये मेथड आपको समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, शेयर करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि शेयरिंग है तो केयरिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए दूसरों को भी साथ साथ में। मैं बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। टिल देन बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबका